you know, endoplasmic reticulum present in the two form. One is in smooth form, means the membrane of the endoplasmic reticulum which is devoid of ribosomes. Okay, and this endoplasmic reticulum is known as smooth endoplasmic reticulum, and mainly it is involved in the synthesis of the lipid. Whereas another cisternae or another network of tubules which is in continuation with the nuclear pore, and this endoplasmic reticulum, which is the membrane of that endoplasmic reticulum, is studded with the ribosomes known as rough endoplasmic reticulum. Okay, its main role is in the synthesis of the protein. Okay, then I'm sharing the screen. Endoplasmic reticulum, actually they are network of tubules or sacs. If they are present in the form of tubules, so we can say that tubules, but when sacs are present, they are known as cisternae. Another name for sacs are known as cisternae, means that portion is dilated part of the tubule called as cisternae. When there is more amount of this synthesis of protein, then that lead to the dilatation of the tubules. That part becomes dilated in the form of sac known as cisternae. Okay, and this endoplasmic reticulum, which extends from the nuclear membrane throughout the cytoplasm, as I told in the last class. Okay, it is considered as the largest organelle of the most of the eukaryotic cells. Okay, the function of this endoplasmic reticulum is manufacture, process, and transport a wide variety of biochemical compounds. Actually, it includes both smooth and rough endoplasmic reticulum, means lipid as well as proteins. Okay, so this endoplasmic reticulum involved in the synthesis of protein, means rough endoplasmic reticulum, and synthesis of this lipid, that is the smooth endoplasmic reticulum. Okay. The endoplasmic reticulum also plays a key role in signal transduction by acting as a major repository of intracellular calcium and plays an important role in muscle contraction. As I told you regarding the smooth endoplasmic reticulum, that is known as sarcoplasmic reticulum in the muscle cell, and apart from the synthesis of the lipid, its main role, particularly smooth endoplasmic reticulum, is the sequestration of the calcium, because as you know, this calcium is required for the contraction of the muscle. अगर calcium नहीं होगा तो ना जो muscle है वो contract नहीं होगी. ठीक है, तो hence there is a need of the calcium, and this calcium, although that comes from this dietary आता है absorbed by the intestine, and then that goes to the cell of this muscles, and it gets separated or sequestered in the this muscle cell by the smooth endoplasmic reticulum, that is known as sarcoplasmic reticulum. Okay, then next. It's not full screen, huh? Just wait it. कोई देर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन. ठीक है, तो स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा नहीं है, दे आर कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन. ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज कवर्ड बाय राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड फंक्शंस इन प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग. ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ बेसोफिलिक वेल डेवलप्ड rough endoplasmic reticulum called as ergastoplasm in pancreas or nasal substance in neurons, which I already told in the last class. ठीक है, तो nasal granules क्या होते हैं? These are the aggregation of this rough endoplasmic reticulum in neurons. ठीक है, आपको पता है neurons, they are actively involved in the synthesis of the neurotransmitters, and these are neurotransmitters are mainly protein in nature. ठीक है, तो क्या होता है, बार बार स्मॉल पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं और प्रोटीन नेचर भी होंगे. तो दीज आर इन कंटिन्यूअसली सिक्रेटेड बाय द नर्व सेल, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूअसली सिक्रीशन हो रहा है एसिटाइलकोलिन का और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बोलते हैं. तो क्या होगा, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ऑफ अबंडेंस अमाउंट ऑफ दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इसलिए क्या होता है कि न्यूरॉन सेल में बहुत ज्यादा डेवलप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. एंड व्हेन वी स्टेन निसल ग्रैन्यूल्स तो है. ठीक है, बेसोफिलिया एक वर्ड आया होगा, आपने लिखा है एक्युमुलेशन ऑफ बेसोफिलिक. व्हाट डज इट मीन? एनीबडी, किसी को पता है बेसोफिलिक? क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा वैसे.
Anybody knows what is basophilic? अच्छा सुनो, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया इसका हिस्टोलॉजी का, ठीक है? तो उसमें आप बिकॉज व्हेन वी स्टेन दिस टिश्यू, ठीक है, सुन लो इसको, मेरे पास स्लाइड नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे है पर ये इस पावर पॉइंट में नहीं है। व्हेन वी स्टेन द टिश्यू, क्योंकि आप जब भी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखोगे, मे बी दिस इंटेस्टाइन देखोगे, लिवर की स्लाइड देखोगे अंडर माइक्रोस्कोप, मे बी स्प्लीन, दिस किडनी, एवरीथिंग, दीज ऑर्गन्स दे आर मेड अप ऑफ टिश्यू, ठीक है, एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ cells, ठीक है? तो when we see the tissue or cells which form the this tissue, ठीक है, तो आपको जब वहां पे कलर दिखेगा दैट इज ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन दिखेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू कलर एंड पिंक और रेड कलरेशन, ठीक है, एंड दैट दीज स्लाइड्स दे आर स्टेन बाय द हेमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन, ठीक है? किससे स्टेन करते हैं उन स्लाइड्स को, टिश्यू को, विद द जस्ट वेट द न्यूक्लियस पोर्शन, ठीक है, आप यहाँ आके देखना माइक्रोस्कोप में, द न्यूक्लियस पोर्शन शोज द ब्लू कलरेशन, ओके, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल शोज द पिंक कलर। तो आप बहुत सारे टिश्यू सेल्स एक साथ रहेंगे, मे बी एपिथेलियम और आधा सेल, क्योंकि एक सेल तो आप अंडर लाइट माइक्रोस्कोप यू आर नॉट एबल टू सी, ठीक है, वो तो कब देखते हो आप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देयर इज नो कलरेशन। आप जितना भी आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा है दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट ओनली, एंड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वी आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में देखा था 3 लेयर्स थी, इलेक्ट्रॉन डेंस 2 एंड इलेक्ट्रॉन लूसेंट, ठीक है, तो उसमें आपको कोई कलरेशन नहीं दिखा था, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। ज्यादा डेंसिटी होगी तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंस, एंड दैट पोर्शन इज विजिबल मोर डार्कर देन द अदर वन, ओनली डेंसिटी वेरिएशन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा पूरा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज द मैग्निफिकेशन इज मोर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड वी आर एबल टू सी द सेल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा पता है, पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एनीबॉडी? यस मैम। क्या क्या होता है बेटा, थोड़ा एक हाथ दो बता दो मैम। आईपीस, ठीक है, स्कूल में देखा होगा ना, ओके, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देयर इज नो स्कोप ऑफ लार्ज मैग्निफिकेशन, ठीक है, मेनली बहुत ज्यादा होगा तो 1000 तक होता है मैग्निफिकेशन, नॉट मोर देन 1000 मैग्निफिकेशन, ठीक है, बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 से तो स्टार्ट होता है, ठीक है, दैट गोज अप टू द 2 मिलियन, तो काफी ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है। वी कैन इवन सी द स्मॉल segment, a small granule of the cell, ठीक है, but in case of compound microscope we are not able to see the individual cell, ठीक है, आप individual cell नहीं देख सकते क्योंकि मैग्निफिकेशन इतना नहीं होता है। तो how we identify on the basis of coloration, hence there is requirement of the staining, ठीक है, there is requirement of the color contrast, ठीक है। तो सिंपल उसमें क्या देखेंगे, when we observe the टिश्यू अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप स्लाइड लगा के देखेंगे तो उसमें ओनली पिंक एंड ब्लू कलरेशन दिखेगा, देयर आर कंट्रास्ट ऑफ रेड और ब्लू और पिंक और ब्लू कह सकते, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है। तो ब्लू कलर जो भी दिख रहा है दैट इज नोन एज बेसोफिलिया, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, ब्लू कलरेशन है बिकॉज ब्लू कलरेशन ऑफ द दिस सेल कंपोनेंट, मेनली न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का नेचर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, तो दिस न्यूक्लिक एसिड्स दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स द बेसिक डाई, ठीक है, एंड बेसिक डाई इज द हेमेटॉक्सिलिन व्हिच स्टेन्स द न्यूक्लियस ब्लू इन कलर, ठीक है। इतना समझ में आया? व्हाट इज बेसोफिलिक मतलब ब्लू कलरेशन, पहली चीज, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट टेक्स द ब्लू कलरेशन ऑफ द हेमेटॉक्सिल स्टेन, ठीक है। हेंस अंडर लाइट माइक्रोस्कोप व्हेन वी सी द स्लाइड और वी सी द टिश्यू तो ब्लू डॉट दिखाई देंगे। आप यहाँ आ रहे हैं, अगर लैब में आते होंगे तो कुछ स्लाइड्स आपको मैं नोटिस बोर्ड में लगी हुई है, कुछ फोटोग्राफ, उसमें आप देख लेना। तो यू सी द ब्लू डॉट्स, दैट ब्लू डॉट्स आर नथिंग बट द न्यूक्लियस, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स द this acid, nucleic acid, and that has
affinity towards the basophilic dye. No, sorry, basic dye, not basophilic. That has affinity towards the basic dye. जब basic dye से इसकी affinity है, तो nucleus is known as basophilic. इतना clear हुआ? Because nucleic acids are present in the nucleus. ठीक है? And rest of the cytoplasm, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर, क्योंकि काफी सारी सेल्स अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो रेस्ट जो बाकी जो न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म बचेगा, दैट टेक्स द रेड कलरेशन और पिंक कलरेशन बाय दैट इज ऑफ द इओसिन. ठीक है, तो हम दो स्टेन करते हैं इसके लिए, टिश्यू के लिए. वन इज टॉक्सिन, अनदर इज इओसिन. ये भी हम बात क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई कलरेशन वैसे भी नहीं दिखता. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वी ऑब्जर्व द सेल. ठीक है, तो अभी अपन हालांकि सेल की बात करें तो जितने भी आपने डायग्राम देखे, इधर स्कीमेटिक देखा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखा है, जितने न्यूक्लियस का देखा है, सेल मेम्ब्रेन का देखा है. ओके, बट वी हैव टू डील विद द टिश्यू. अभी आगे जाओगे तो सेल तो थोड़ा जल्दी से खत्म हो जाएगी. तो डील विद द टिश्यू. तो टिश्यू में होगा अंदर, उसके अंदर सेल है, तो सेल्स, द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल दे टेक द ब्लू कलरेशन ऑफ द हेमेटॉक्सिन. तो जब भी ब्लू डॉट दिखाई देगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज न्यूक्लियस. That may be oval in shape, that may be spherical in shape, that may be elongate as per the type of the cell or type of the epithelium. ठीक है, तो हमेशा अपन न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस का नेचर दैट इज बेसोफिलिक इन नेचर एंड बिकॉज इट कंटेन्स द न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो हेमेटॉक्सिन स्टेन का कलरेशन ले लेगा एंड शोज द ब्लू कलरेशन. रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म शोज द पिंक कलरेशन बिकॉज दैट इज एसिडोफिलिक और इओसिनोफिलिक. ठीक है, तो एसिडिक डाई कौन सी है? पिंक कलर की है और रेड कलर की है. तो साइटोप्लाज्म कैसा दिखाई देगा? बैकग्राउंड कैसा दिखाई देगा ऑफ एनी सेल? दैट इज पिंक इन कलरेशन और रेड इन कलरेशन. जनरली रेड नहीं होता, पिंक की तरफ जाता है. ठीक है, तो और पिंक पूरा बैकग्राउंड रहेगा. इफ यू सी द टिश्यू विथ ब्लू डॉट्स. ब्लू डॉट्स मीन्स क्या होगा? एनीबडी? ब्लू डॉट्स मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ब्लू डॉट्स मीन्स न्यूक्लिक मटेरियल. न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस. ठीक है, एंड विथ साइटोप्लाज्म पिंक कलरेशन. ठीक है, बट इन द सेल्स, ठीक है, लाइक पैनक्रियास, लाइक न्यूरॉन्स, ठीक है, इन द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल कौन सा है जो अभी मैं बात कर रही हूँ? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल राइबोसोम्स आर अटैच. अपन मेनली यहाँ पे क्योंकि अबंडेंट सिक्रेटरी प्रोटीन की बात करेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑल्दो बिकॉज रोल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ड्यू टू राइबोसोम है. ठीक है, तो राइबोसोम्स आर अटैच ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सिक्रेटरी प्रोटीन. क्यों? क्योंकि बाकी सेल के अंदर की प्रोटीन जो चाहिए वो तो पॉलीसोम और जो सिंगल राइबोसोम से वो भी कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है, वो रिक्वायरमेंट उतनी फुलफिल कर देते हैं. बट व्हेन देयर इज नीड ऑफ एबंडेंट सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन व्हिच इज गोइंग टू बी सिक्रेटेड आउटसाइड फ्रॉम द सेल. ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट होना है, पैनल्स बोल रहे हैं इन द न्यूरॉन. ठीक है, इन दीज सेल्स, ठीक है, एबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट. ठीक है, तो आपको मैंने साइटोप्लाज्म किस कलर का बताया था? एनीबडी अभी बताया? पिंक कलर. पिंक कलर. ठीक है, देन एबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा मींस एबंडेंट राइबोसोम होंगे. ठीक है, राइबोसोम के अंदर क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड भी होगा. ठीक है, सॉरी ये राइबोसोम्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है दे आर आल्सो शोज द बेसोफिलिया. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में भी जितना ब्लू कलरेशन दिख रहा है दैट इज आल्सो नोन एज बेसोफिलिया. समझ में आ गया? अदरवाइज होल साइटोप्लाज्म इज पिंक इन कलर. लेकिन जो सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द abundant protein synthesis, because those cells are having abundant rough endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum का मतलब है abundant ribosomes. ठीक है, abundant ribosomes होंगे. तो उन राइबोसोम they are also having showing the basophilia. न्यूक्लियस तो डॉट होता ही है ब्लू कलर का,
बट जिन सेल्स में ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, द साइटोप्लाज्म, सम पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म आल्सो शोज द ब्लू कलरेशन. ठीक है, तो दैट शोइंग ऑफ द दिस ब्लू कलरेशन इज नोन एज बेसोफिलिया और बेसोफिलिक. ठीक है, इसलिए इसमें लिखा है एक्युमुलेशन ऑफ बेसोफिलिक. बेसोफिलिक का मतलब समझ में आया? वाई मीन्स द कलर इज बेसोफिलिक, ब्लू कलर. ठीक है, बी से स्टार्ट रहेगा, समझ में आ जाएगा. बी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस बेसोफिलिक के लिए भी बी से स्टार्ट हो रहा है, और दिस ब्लू कलर के लिए बी. तो बेसोफिलिक मीन्स ब्लू कलरेशन. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जब भी अबंडेंट बेसोफिलिया दिख रहा है, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ द अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, these are steroid in nature. ठीक है, these hormones they are steroid in nature, hence adrenal cortex की जो cells होंगी उनमें भी we see the abundant smooth endoplasmic reticulum, because these smooth endoplasmic reticulum are involved in the steroid hormone. gonad के अलावा आपको adrenal cortex में भी ज्यादा smooth endoplasmic reticulum मिलेंगे. steroid in nature. तो adrenal medulla के cells में नहीं होगा more abundant smooth endoplasmic reticulum, but adrenal cortex because it secretes the glucocorticoid mineralocorticoids. ठीक है, तो hence this abundant smooth endoplasmic reticulum seen in the adrenal cortex. ठीक है, as well as मसल का बता दिया, skeletal and cardiac muscle cells have elaborate system of smooth endoplasmic reticulum. ये बता ही दिया है, which sequesters the calcium ions which are released upon stimulation of muscle contraction. ये पूरा का पूरा आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया. Any doubt regarding this? No, ma'am. This is the diagram showing the right side. There is presence of the smooth endoplasmic reticulum. You see the see the membrane. Okay, limiting membrane of the smooth endoplasmic reticulum. There is no presence of the ribosomes, but here you see this is the rough endoplasmic reticulum and studded with the ribosomes. ठीक है, here also ये क्या होनी चाहिए? ये चीज क्या दिख रही है? Anybody? Where I have Ma'am, slide haven't changed. Pardon बेटा, ये क्या है? ये चीज, ये गोल Ma'am, slide change नहीं. साइड से नहीं हुई. No, ma'am. अब No, ma'am. No, ma'am. डायग्राम नहीं दिख रहा आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी No, ma'am. No, ma'am. पुरानी वाली स्लाइड दिख रही है क्या? Yes, ma'am. पुरानी वाली दिख रही. ये दिख रहा है, ये वाली. यस मैम, हो गई. ठीक है, तो हियर presence of the rough endoplasmic reticulum. ठीक है, attachment of the ribosomes. This structure, can you name this structure? 1 2 3 4, हालांकि पढ़ाया नहीं आपको. कुछ पार्टीशन दिख रहे हैं इसमें बेटा? एनी गेस? बहुत अच्छे से बहुत पढ़ते हो आप लोग ये ऑर्गेनल, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी क्लियर सेक्शन. इसके लिए क्या होता है, और थिन सेक्शन चाहिए. जब हम लोग टिश्यू लेते हैं ना, 1 mm by 1 mm लेना चाहिए, तो दिस में भी स्लाइटली थिक सेक्शन. ठीक है, इसलिए बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ पार्टीशन लाइक स्ट्रक्चर. पार्टीशन जा रहे हैं अंदर की तरफ. क्या होना चाहिए? मैम स्लाइड में दूसरा डायग्राम दिख रहा है, फिगर 20 वाला. क्या हो गया भैया? चलो स्लाइड शेयर नहीं करते, ऐसे ही दिखा देते. ये वाला दिख रहा है अभी स्ट्रक्चर? यस मैम. सॉरी, ये हिल गया. एक मिनट, अब ये वाला दिख रहा है ना. नेम दिस स्ट्रक्चर. ये वाले क्या है? व्हाट आर दिस? नहीं पता? Mitochondria, ma'am.
Good, very good. Okay, these all are the mitochondria because this tissue which was taken during the processing, that was not enough thin, बहुत thin होना चाहिए to penetrate this glutathione है, हालांकि वो आपका पार्ट नहीं है, तो क्या होता है कि ये थोड़ा थिक सेक्शन होगा, hence cristae are not very well visible. ठीक है, but all these 1, 2, 3, 4, 5, all these are the mitochondria. And here are the this rough endoplasmic reticulum are visible, which are studded with the ribosome. Okay, थोड़ा सा स्लाइड हिल गई है. Ribosome. This is the diagram, electron microscopic structure कह सकते हैं या electron micrograph of smooth endoplasmic reticulum. Is it visible here? This slide is visible. Yes, ma'am. हाँ, तो जल्दी आंसर, तो फास्ट आंसर किया करो, फटाफट अनम्यूट किया करो. ठीक है, तो here you see the smooth endoplasmic reticulum devoid of any ribosome. ठीक है, यहाँ पे आपको राइबोसोम इनकी वॉल पे नहीं दिख रहे, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया में डॉट डॉट दिखाई दे रहे, मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हियर. ठीक है, नाउ रिगार्डिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर और नॉन मेम्ब्रेनस. Non-membranous. Non-membranous. ठीक है, तो एक्चुअली दिस राइबोसोम्स मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, एंड कंप्राइज ऑफ 2 यूनिट्स. ठीक है, लार्ज सब यूनिट एंड this small subunit, and these subunits they differ in case of prokaryotic cells and eukaryotic cells. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में अपन कितना एस बोलते हैं, अच्छा यूनिट जो उसकी होती है, जो that is by centrifugation. ठीक है, तो this on the base of that units that is known as Swedberg coefficient. ठीक है, तो कितने s होगा, that is decided by this Swedberg values. ठीक है, तो in case of eukaryotic cells 80 Swedberg unit जो रहेगा, जो presence of the ribosome रहेगा, and this 80s comprise of the two subunits. Small one is 40s and large one is 60s subunits. तो S means क्या हो जाएगा, Swedberg units. ये आप सब पढ़ चुके हो नीट के एग्जाम के लिए. ठीक है, तो variety of cytosolic proteins enter the nucleus through the nuclear pores and are assembled with the ribosomal RNA in the nucleolus. क्या होता है साइटोप्लाज्म में, जितने मैक्सिमम जो प्रोटीन्स होंगे, थ्रू द न्यूक्लियर पोर. ठीक है, they get entry inside the nucleus and they get this राइबोसोम की सिंथेसिस जब हो रही है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं. ठीक है, एक तो राइबोसोमल आरएनए होगा. अपार्ट फ्रॉम द राइबोसोमल आरएनए देयर इज सम डिफरेंट प्रोटीन्स आर देयर. तो प्रोटीन और आरएनए का कॉम्बिनेशन होगा इन अ सिंगल यूनिट ऑफ द राइबोसोम. ठीक है, तो 2 चीज मेन होती है उसमें, एक तो आरएनए जिसका सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, इन द न्यूक्लियोलस. ठीक है, प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है. प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो वो दैट एंटर्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर एंड एंटर्स इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, एंड इन द न्यूक्लियोलस where there is synthesis of rRNA takes place. ठीक है, तो प्रोटीन वहां पे आ जाएगा and there is formation of the ribosome. Although 2 subunits are separated, and during the protein synthesis these 2 subunits they join. तो this composed of approximately 60% RNA and 40% protein. ठीक है, तो 60-40 जो इसका रेशियो दिया हुआ है, that is the about the 80s ribosome present in the eukaryotic cells. ये आपको पता है सबको 80s राइबोसोम के बारे में, फाउंड इन यूकैरियोट्स. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डाल्टन्स में है 5x10, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. इट इज कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन. ये 2 चीज होंगे. राइबोसोम के 2 कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम आर राइबोसोमल आरआरएनए और एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स. ठीक है, तो प्रोटीन्स काफी 40 अबव 40 रहती है, अप्रोक्सीमेटली 40 प्रोटीन्स आर देयर. ठीक है,
तो 80s राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सबयूनिट्स नेमली 6 and 40s, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें दिया हुआ 60s जो है दैट इज हैविंग 28 जो एस दिया आरआरएनए एंड 5 as Swedberg unit is rRNA, and about 50 different proteins are present in 60S. 60 Swedberg जो large subunit है that is composed of these units, ठीक है। And 40S of this ribosome of the eukaryotic cells that is having 80 Swedberg unit rRNA and 30 different proteins are there, ठीक है। तो large subunit में दिस आरआरएनए एंड प्रोटीन का कंपोजिशन दिया हुआ है, एंड 40s में जो है स्मॉल सबयूनिट्स में प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन एज वेल एज दिस यूनिट ऑफ द आरआरएनए। 70s राइबोसोम जो आपको पता ही दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट ठीक है, आप बन जाए तो याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज लार्ज सबयूनिट इज कंपोज्ड ऑफ 50s एंड स्मॉलर वन इज 30s सबयूनिट, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल सबयूनिट्स। ऑल द 55s राइबोसोम जनरली दैट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ओनली, ठीक है। 55 जो है जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस eukaryotic ribosome and prokaryotic ribosomes. Then ribosome actually that is present in 3 forms. One is present in free ribosome, means when the scattered single ribosomes they are diffused, ठीक है। And this free ribosome if present in abundance that shows the this diffuse basophilia, ठीक है। Free ribosomes when scattered in the cell, ठीक है, showing the diffuse basophilia. What does it mean? अभी मैंने बताया था basophilia means ब्लू Blue coloration. ठीक है। तो राइबोसोम का जो नेचर होता है दैट इज बेसोफिलिक इन नेचर, ठीक है। अब सिंगल जो राइबोसोम होंगे अगर वो सेल में पूरी जगह फैले हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक डेंसिटी या अपन कह सकते हैं इंटेंसिटी नहीं आएगी कलरेशन में, ब्लू कलरेशन में, बिकॉज सिंगल दिस राइबोसोम्स दे आर स्कैटर्ड इन द दिस सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, तो दैट लीड टू द डिफ्यूज बेसोफिलिया, ठीक है। And generally free ribosomes they are involved in the protein synthesis which are used by the cell itself, ठीक है। Then polyribosomes or polysome, when the number of these ribosomes they are present in cluster, ठीक है, on mRNA strand, mRNA डायग्राम आगे देखोगे आप, तो mRNA का स्ट्रैंड है, उस पे अटैचमेंट ऑफ दिस polyribosomes है, ठीक है। When they are attached to the endoplasmic reticulum, then it is known as rough endoplasmic, attached to the rough endoplasmic reticulum, या attached अपन कह सकते हैं attached ribosomes, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा होगा where in the cells where there is more amount of secretory proteins are synthesized, ठीक है। तो this portion is abundant in where there is a need of abundant amount of secretory protein, क्योंकि वो secrete होके किस में जाएगा, inside the this lumen of the rough endoplasmic reticulum, and from where it goes into the Golgi complex where there is packaging takes place, and from the Golgi complex the secretory vesicle that comes out from the cell, ठीक है। तो या तो एक्सोसाइटोसिस से बाहर है, अलग अलग डिफरेंट मोड्स हो गए, और बाहर आएगा एज ए secretory प्रोटीन, मे बी एंजाइम भी हो सकता है और दूसरे हार्मोन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स दैट कम्स आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो जिन सेल में ज्यादा सेक्रेटरी प्रोटीन की आवश्यकता है, तो दो सेल्स दे आर हैविंग द अटैच्ड दिस राइबोसोम्स, these ribosomes they are attached to the membrane of the rough endoplasmic reticulum, okay। protein formation through the transcription of genes in the nucleus result in the formation of, ठीक है। आपको पहले ही बताया था जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है दैट इज डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए से ही जो
जो टेम्पलेट बनेगा, एक जो स्ट्रैंड रहेगा डीएनए का, दूसरा जो रहेगा आरएनए का बनेगा, एंड दैट इज गोज इनटू द दिस गिव्स इंफॉर्मेशन टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से फिर एमआरएनए जो है दैट गिव्स दैट ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म की कौन सी प्रोटीन बननी है, और जब साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है, वहां उसी सीक्वेंस में टीआरएनए कोडॉन लेके आएंगे, ठीक है, और वो टेम्पलेट अटैचमेंट होता चला जाएगा, एंड दैट लीड टू द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट एमिनो एसिड्स दैट डिफर्स इन डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। तो जिस हिसाब से वो जमती जाएगी उसी टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस। फ्री राइबोसोम प्रेजेंट इन एवरी काइंड ऑफ सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इट कॉजेज डिफ्यूज बेसोफिलिया, पहले ही बता देता व्हाट डज इट मीन। डिफ्यूज बेसोफिलिया मींस एक आपको टिंज मिलेगी, ब्लू कलरेशन टिंज इज विजिबल व्हेन वी सी द सेल, ठीक है। ब्लू न्यूक्लियस तो मिलेगा, बट दिस साइटोप्लाज्म आल्सो शोइंग द ब्लूइश टिंज because of the scattered free ribosomes are present throughout the cytoplasm, okay. रैपिडली ग्रोइंग सेल्स एंड एरिथ्रोब्लास्ट में मिलेगा, लेकिन मैच्योर में आपको नहीं मिलेगा। दिस फ्री राइबोसोम पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ साइटोसॉल, मैंने पहले बता दिया था कि दिस फ्री राइबोसोम्स दे आर मेनली सिंथेसाइज द प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व विच इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल इटसेल्फ, मतलब सेल के जो कंपोनेंट बनने प्रोटीन के दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द फ्री राइबोसोम, नॉट द सिक्रीटरी प्रोटीन, ठीक है। लाइक जैसे आप सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सबनेट्स फॉर माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर फॉर्म बाय द प्रोटीन्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस ग्लोबुलर प्रोटीन्स टेक्स प्लेस, ठीक है, टू फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, प्रोटोफिलामेंट्स होते, देन दे फॉर्म दे आर फॉर्म बाय द ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। डाइमर बनेगा, फिर ये आपको आगे बताऊंगी, पॉलीमराइजेशन or chain reaction takes place to form the microtubules, and these free ribosome provides protein for growth। अच्छा, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए भी जो हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबुलर प्रोटीन है दैट इज आल्सो synthesized by the ribosome। Is there any class at 11 o'clock? कोई क्लास है आपकी 11 बजे से? देखो अभी तक लिंक नहीं आया। लिंक नहीं आया, चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स तो आपको डॉट डॉट कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दिस पिक्चर इज नॉट क्लियर। ये डॉट्स जो दिखाई दे रहे स्मॉल स्मॉल, दीज आर द फ्री राइबोसोम्स। ये क्या है फिर से पूछ रही हूँ, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, और ये जो व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे दीज आर द लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। दिस व्हाइट कलर इज नॉट, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, दीज आर द लिपिड्स, लिपिड एरिया जो है दैट लिपिड कम्स आउट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द दिस टिश्यू प्रोसेसिंग। मतलब जब टिश्यू प्रोसेसिंग करते तो जो केमिकल्स यूज होते हैं, दे एक्सट्रैक्ट द लिपिड पोर्शन, डिसॉल्व करके निकाल देते हैं, एंड दैट पोर्शन रिमेन्स एम्प्टी, ठीक है, एज अ व्हाइट एरिया। ये जो दिखाई दे रही लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है, जिसमें से लिपिड निकल गया है, तो दिस एम्प्टी एरियाज और व्हाइट एरियाज आर विजिबल, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, ये लिपिड पोर्शन है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है व्हाट इज दिस, अगर किसी ने बता दिया तो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेरी गुड, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज यूक्रोमेटिन, और थोड़ा बहुत आपको इधर हियर सी द हेट्रोक्रोमेटिन। Polyribosome or polysome, ठीक है। These ribosomes they are present in cluster, as already I told you। Average number of cluster was, ये hemoglobin synthesis में फिजियो में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। mRNA से अटैच होंगे, उसका ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I'll show the diagram only। Okay, this is the electron micrograph of the free ribosome attached to newly transcribed mRNA, ठीक है।
तो ये mRNA की स्टैंड है, उसमें ये राइबोसोम्स अटैच दिख रहे हैं mRNA का, जिसमें आपको ये पॉलीराइबोसोम्स अटैच, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलीराइबोसोम, ठीक है। These are called as polyribosome. अगर और फ्री राइबोसोम्स होंगे, they are not attached to the mRNA, ठीक है, they are scattered in the this cell. However, this polysome or polyribosome, they are attached to the strand of the mRNA, and that lead to the formation of the polypeptide chain. जिसका एग्जांपल आपको बताया था कि प्रोटीन ऑफ द हीमोग्लोबिन दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द पॉलीराइबोसोम. The next organelle that is Golgi complex, इसको थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ, ठीक है. Golgi complex जो है that is formed by, अच्छा इसका फंक्शन क्या होता है Golgi complex का? मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाना. हाँ, और उसके अलावा पैकेजिंग. पार्डन बेटा, सेल पैकेजिंग ऑफ मटेरियल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट. गुड, वेरी गुड, ठीक है. It modifies the content, ठीक है, which are formed by the rough endoplasmic reticulum or smooth endoplasmic reticulum. Means it modifies the protein as well as the lipid which are synthesized by the smooth endoplasmic reticulum, as well as it lead to the packaging of these constituents or these components, ठीक है, that after packaging those material in the form of vesicles, they come out from the cell, ठीक है, as a secretory material. This Golgi complex आपको पता है, कैमिले गोल्गी ने बताया था, and this complex की बोल रहे हैं because it is in the form of a stack of certain tubules or cisternae, ठीक है, यहाँ लिखा होगा देखते हैं, comprise of series of 5 to 8 cup shaped membrane covered sac called cisternae, ठीक है, that looks something like a stack of deflated balloons. ये आपको देखेंगे या तो ट्यूब्यूल फॉर्म में या स्लाइटली दिस इन्फ्लेटेड ट्यूब्यूल्स होंगे, दे आर नोन एज सिस्टर्ने, ठीक है, एंड दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, एक के पास एक के बाजू में लगे रहते हैं, एंड देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन दोज ट्यूब्यूल्स और सैक्स. ऐसा नहीं है कि एक ट्यूब्यूल लग गई फिर दूसरी इसकी बाजू में लग गई, बट देयर इज ऑलवेज कम्युनिकेशन बिटवीन दीज ट्यूब्यूल्स. स्टैक फॉर्म में तो जरूर अरेंज है, but there is communication also present between these tubules or these sacs, ठीक है. Animal cell generally contains usually 3 to 10 Golgi stacks per cell. Okay, आपको सिस फेस ट्रांस फेस में डायग्राम में ही बता देती हूँ. Yeah, this is known as Golgi complex, ठीक है. तो Golgi complex is formed by the stack of tubules. ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे tubules है, as well as dilated portion दिखाई दे रहे हैं, जिनको अपन सिस्टर्ने कह सकते हैं, ठीक है, इनको अपन कहेंगे सिस्टर्ने, and they are arranged in the form of a stack, एक दूसरे के बिल्कुल adjacent जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो this is Golgi complex composed of 2 phases. One, this phase which is convex is known as cis phase, and this is immature phase, ठीक है. तो जो भी सिंथेसिस हो रही है, मान लो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फ्रॉम द वेसाइकल्स, जिसको अपन ट्रांसपोर्ट वेसाइकल कहते हैं, फ्रॉम दैट ट्रांसपोर्ट वेसाइकल दैट प्रोटीन रीचेस टुवर्ड्स द सिस फेज ऑफ Golgi complex. हमेशा जो भी चीज सिंथेसाइज हो रही इनिशियली, मे बी लिपिड और प्रोटीन, वो कहाँ से जाएगी, दैट एंटर्स थ्रू द सिस फेज, बिकॉज दिस सिस फेज इज मैच्योर फेज एंड इज कॉन्वेक्स फेज. आप देख रहे हैं कॉन्वेक्सिटी दिखाई दे रही है, तो सिस फेज इज मैच्योर फेज. इट रिसीव्स द सिक्रेटरी मटेरियल that may be lipid or protein from the rough endoplasmic reticulum or smooth endoplasmic reticulum, and via transport vesicles, ठीक है. ट्रांसपोर्ट वेसाइकल जो भी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज किया है वो सिस फेज में जाएंगे. सिस फेज के बाद क्या होगा, एक ट्यूब्यूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, एंड during their this transportation from one stack from one tubule to another, ठीक है, modification also takes place, like glycosylation takes place, ठीक है. तो ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है या ग्लाइकोलिपिड बन रहा है, तो यहाँ मॉडिफिकेशन भी साथ साथ में चलता रहेगा, एंड फ्रॉम द सिस फेज दे रीच अप टू द ट्रांस फेज, एंड दिस ट्रांस फेज इज नोन एज मैच्योर फेज, ठीक है. फ्रॉम
and the vesicles they bud off from here, ठीक है, and any maybe glycoprotein, glycolipid that comes out from here, and then the vesicles that comes secreted out from the cell towards the outside, ठीक है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कुछ पूछना है आपको? सिस फेस, ट्रांस फेस, अभी मैनो 6 फॉस्फेट वगैरह सबका दिया हुआ आगे. इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? अभी कुछ पार्ट रह रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डायग्राम? नो मैम. यहाँ पे क्योंकि यहाँ एक चीज होनी थी, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल होना चाहिए, ठीक है. ट्रांसपोर्ट वेसाइकल क्या होता है? दैट कैरीज द secretory material from the rough endoplasmic reticulum or smooth endoplasm. फिर वो वेसाइकल that enters through the cis phase or immature phase of the Golgi complex, ठीक है. And that this component or the secretory material कह सकते हैं, अभी वो secretory नहीं है although, ठीक है, that component that passes through the all the this stacks, ठीक है, and while during passing through these different levels कह सकते हैं, different tubules, modification also takes place, means addition of this carbohydrate moieties takes place to form the this glycoprotein or glycolipid, ठीक है. And ultimately that after formation, ठीक है, then those components that come out bud off from this Golgi complex and are ready for secretion, ठीक है. इसमें लिखा हुआ बस मैं पढ़ देती हूँ. एट द ट्रांस साइड एनास्टोमोसिंग ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्ने फॉर्म द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, ठीक है, कि ट्रांस में जो पार्ट में है, ठीक है. स्मॉल वेसाइकल्स आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द सिस्टर्ने एंड लार्जर वेसाइकल्स और वेसिकल्स आर ऑफन डिटैच्ड एट द ट्रांस साइड. ओके, ट्रांस छोटे छोटे आपको साइड में देखोगे वैक्यूल्स दिखाई देंगे, वेसाइकल्स, नॉट वैक्यूल्स. Then synthesis of complex protein by the addition of carbohydrate molecules से बता दिया था आपको, glycosylation हो रहा है. Distribution and shipping department for the cell's chemical products, means it lead to the transportation of the material as well as packaging भी हो जाएगी इसमें. Modifies protein and lipids that are synthesized in the endoplasmic reticulum, आपको ये भी बता दिया है, ठीक है. And prepare them for vesicles transferred through the Golgi complex in a cis to trans direction, ठीक है. This is the schematic diagram of this Golgi complex having the this is the cis part, ठीक है. Endoplasmic reticulum से जो वेसाइकल आएगा, हाँ, इस वेसाइकल को कहेंगे this is known as transport वेसाइकल, ठीक है. इसका और कुछ काम नहीं, यहाँ से जो भी कंपोनेंट बना है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मान लो प्रोटीन बना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंड दिस वेसाइकल इज नोन एज ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, ठीक है. केवल काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम endoplasmic reticulum to the Golgi complex, ठीक है. And these are the different tubules or cisternae of the Golgi complex, ठीक है. They are present in the form of stack. So this is immature phase, this is mature phase, ठीक है. And they lead to the release of these vesicles, and these vesicles जो है, they are the secretory vesicles, ठीक है. And these vesicles they come out from the cell. So lysosome that is also synthesized by that is also formed by this Golgi complex, ठीक है. होगा वो अलग होगा, मैनो 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होगा. तो the lysosomal enzymes they are separated from the other secretory proteins. Why? Because they are lysosomal enzymes. They may lead to the autophagy of the cell, ठीक है. तो इसको पहले ही सेपरेट हो जाता है. तो there is requirement of the initial signal by the mannose 6 phosphate, ठीक है. तो this is all for today about different organelles, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में अपन सेल पूरी कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा समय लग रहा है इसमें एक्सप्लेन करने में. Any doubt regarding these organelles, Golgi and this ribosome? और